Hi all. What we studied yesterday? We are learning the story A Bell for the Cat. Do you remember the story? What happened in our story? हमारी कहानी में क्या हुआ? I am going to tell that story one more time. Listen carefully. There were several rats living in one place. A cat had always eaten mice, so that rats became very sad. One day, an old mouse summoned everyone. Then he said, "We have to find a solution." At the meeting, everyone talked, but there was no solution to prevent the cat. Finally, a little mouse came up and said, "I know what to do." एक प्लेस पर कई चूहे रहते थे. एक बिल्ली ने हमेशा चूहे खाए थे, तो चूहे बहुत दुखी हो गए. एक दिन एक बूढ़ा चूहा ने सभी को बुलाया. तब उन्होंने कहा, हमें इसका रोकना होगा. बैठक में सभी ने बात की, लेकिन बिल्ली को रोकने के लिए कोई सॉल्यूशन नहीं था. लास्ट एक छोटा चूहा आया. उसने कहा, मुझे पता है कि हम क्या करना है. वो छोटा चूहा ने कहा, The cat comes in without making a noise. So we have to put a bell around the cat's neck, so we can know when the cat is coming. उसने क्या कहा? छोटा चूहा ने क्या कहा? Listen. वो बिल्ली जब आता है तो कोई आवाज़ नहीं करता है. ये बहुत शांत है. ये चुपचाप आता है और हम में से एक को पकड़ता है. हम इसके कोई आवाज़ नहीं सुन सकते. इसलिए हम क्या करना है? बिल्ली के नेक में एक बेल बांधना चाहिए. इस प्रकार हम सुन सकते हैं जब ये आता है. Now we are going to read the remaining part of our story. Among them there was a quiet old mouse. He stood up and looked at the little mouse. That is a good idea, he said. A bell on the cat. Yes, a bell on the cat. But just tell me who will bell the cat. I'll read this paragraph one more time. Listen carefully. Among them there was a quiet old mouse. He stood up and looked at the little mouse. That is a good idea, he said. A bell on the cat. Yes, a bell on the cat. But just tell me who will bell the cat. उनमें से एक बूढ़ा माउस था. उसने खड़े होकर छोटे चूहे को देखा. उन्होंने कहा, ये एक अच्छा आइडिया है. बिल्ली पर एक बेल. आहा, लेकिन बस मुझे बताओ कि बिल्ली को बेल कौन देगा. उसने क्या कहा? ये एक अच्छा आइडिया है. बिल्ली पर एक बेल अच्छा आइडिया है, लेकिन बस मुझे बताओ कि बिल्ली को बेल कौन देगा. At once the room became all quiet. Yes, tell us who will bell the cat. जल्दी रूम में सभी शांत हो गया, साइलेंट हो गया. हाँ, हमें बताओ कि बिल्ली को बेल कौन देगा. क्या हुआ? रूम में सभी साइलेंट हो गया. बूढ़े ने कहा, हमें बताओ कि बिल्ली को बेल कौन देगा. We are going to the next paragraph. Listen. Everyone looked at the little mouse. Not I, said the little mouse and ran out of the room. Not I, said another and ran out of the room. Not I, said a third and ran out of the room. One by one, all the mice ran out of the room.
No one was ready to bell the cat. One more time, listen. Everyone looked at the little mouse. Not I, said the little mouse and ran out of the room. Not I, said another and ran out of the room. Not I, said a third and ran out of the room. One by one, all the mice ran out of the room. No one was ready to bell the cat. No one was ready to bell the cat. क्या हुआ? सभी ने छोटे चूहे को देखा. उसने क्या कहा? मैं नहीं. छोटे चूहे ने कहा मैं नहीं और रूम में से बाहर भाग गया. मैं नहीं, दूसरे ने कहा और रूम में से बाहर भाग गया. मैं नहीं, तीसरे ने कहा और रूम में से बाहर भाग गया. ऐसे सभी चूहे कमरे से बाहर भागे. कोई भी बिल्ली पर बेल बांधने के लिए तैयार नहीं था. देखो क्या हुआ? सभी चूहे रूम में से बाहर भागे. कोई भी बिल्ली पर बेल बांधने के लिए तैयार नहीं था. Understood? Now tell me, what is the moral of the story? It is easier said than done. It is easier said than done. हम कुछ भी आसानी से कह सकते हैं. अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो कुछ मत कहो. क्या है? हमको कुछ भी आसानी से कह सकते हैं, लेकिन अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो कुछ मत कहो. Don't say anything if we can do it. ओके? ऐसे करने से आसान कहा जाता है. कहना आसान है. अगर हम इसे नहीं कर सकते तो कुछ मत कहो. Come on, let's read the lesson one more time. Among them, there was a quiet old mouse. He stood up and looked at the little mouse. That is a good idea, he said. A bell on the cat. Yes, a bell on the cat. But just tell me who will bell the cat. At once, the room became all quiet. Yes, tell us who will bell the cat. Everyone looked at the little mouse. Not I, said the little mouse and ran out of the room. Not I, said another and ran out of the room. Not I, said a third and ran out of the room. One by one, all the mice ran out of the room. No one was ready to bell the cat. उनमें से एक बूढ़ा माउस था. उसने खड़े होकर छोटे चूहे को देखा. उन्होंने कहा ये एक अच्छा आइडिया है. बिल्ली पर एक बेल. ये एक अच्छा आइडिया है. किसने कहा? बूढ़ा माउस था. उसने कहा. लेकिन बस मुझे बताओ कि बिल्ली को बेल कौन देगा. अभी मुझे बताओ बिल्ली को बेल कौन देगा. जल्दी रूम में सभी शांत हो गया. सभी साइलेंट हो गया. हाँ, हमें बताओ कि बिल्ली को बेल कौन देगा. बूढ़ा ने फिर से कहा मुझे बताओ कि बिल्ली को बेल कौन देगा. सभी ने छोटे चूहे को देखा. मैं नहीं, छोटे चूहे कहा और रूम में से बाहर भाग गया. मैं नहीं, दूसरे ने कहा और रूम में से बाहर भाग गया. मैं नहीं, तीसरे ने कहा और रूम में से बाहर भाग गया. इसे वन बाय वन सभी चूहे रूम में से बाहर भागे. कोई भी बिल्ली पर बेल बांधने के लिए तैयार नहीं था. उसका आइडिया अच्छा था, लेकिन कोई भी बिल्ली पर बेल बांधने के लिए तैयार नहीं था. अभी आपको ये कहानी में से क्या समझ गया? हम कुछ भी आसानी से कह सकते हैं. अगर हम ऐसे नहीं कर सकते तो कुछ मत कहो. Don't say anything if we can't do it. Okay, that's all for today.
दिस इज़ योर होमवर्क, यह है आपका होमवर्क। पहले आप लोग क्या करना है, इसे अपना नोटबुक में लिखें। देन टिक द करेक्ट सेंटेंस इन ईच सेट। इसमें करेक्ट सेंटेंस को टिक करें। पहले ये अपना नोटबुक में लिखे, बाद में रीड करो और इसमें से करेक्ट सेंटेंस को टिक करें। And write in your copywriting book also. Thank you all. Be safe. See you again tomorrow.